Hello everyone, welcome to all of you. So dear students, in this session we will have a discussion on the engineering mathematics questions of mining branch which has been asked in the GATE 2026. Although all these questions are memory based questions only, so before proceeding to the solution part, you can visit our website which is study5plus.com, and here we are having Arjuna batch which is dedicated for engineering maths and general aptitude. No matter whatever is your branch, you can join this batch for the upcoming GATE exam. ठीक है, if you are from ECEEIN, civil, mechanical, petroleum, mining, XE, CS, any of the branch you are having, agriculture, biotech, you can go with this Arjuna batch. इस Arjuna batch में जब आप जाएंगे तो here once you will click, you can see, okay, we are having this batch is bilingual, where you will get the comprehensive course of engineering maths and general aptitude in the price of 3,999. Other than this, here we are having comprehensive course dedicatedly in the English. Okay, and here we are having one course which is for GATE and ESE both. This is only for GATE and this is for GATE and ESE. Here we are having one course for the DA branch students as well. Okay, and here you can go for the separate. All right, if any students is from the ECEEIN and you want to go with here the dedicated all the subjects we are covering here in the Lakshya batch as well as in the Impulse batch. Impulse batch is a recorded batch, Lakshya batch is a hybrid batch where we are having live plus recorded classes. Okay, and here we are having for the W also Impulse batch. Combo of 5 subject is also available. Subject wise course is also available. So you can explore the courses. Okay, while you are exploring, if you face any difficulty, feel free to reach me through this number. Once you will click here, तो contact us का option आएगा. And directly you can contact on this given number. Okay, you can message me, call me or WhatsApp me. Now one very important thing, if you are looking for GATE 2026 paper solution, video solution available है यहाँ पे. Here what you need to do, you need to click on this one only. ये 2026 paper solution, all branches we are having here. Till now on the 7th and 8th February को जो भी पेपर हुए हैं, ठीक है, we received the memory based questions. We made the videos already. You can see on our YouTube channel. We already provided the solutions here. Okay, so all these questions are memory based questions only. Once the official response sheet will release from the IIT, then we will make one more video for all these branches. We will make the videos, and then you can get the complete solution as well. Okay, now here if you want to go with the IN branch like this, you can see chemical engineering. This is for the general aptitude. Okay, for all these branches here it is mentioned like this. And if you want to download the PDF, तो below the every video you can see option है आपके पास download solution PDF का, आप download कर सकते हो. Once you will click here, so the solution PDF will be open like this. Okay, and you can go for it. You can see this is a 26 pages PDF. यहाँ पे आपके पास questions और solutions like this here we are having available. Or once you will click here, it will open like this. You can see the questions as well as the solution, and you can download if you want to download. Okay, so चलिए let's get back to the solution portion of this mining branch. So in this session we will have a discussion on dedicatedly engineering mathematics questions of mining branch. चलिए start करते हैं very first question के साथ. We are having here the first question which is talking about if I is an identity matrix, the polynomial equation that satisfy the Kelly-Hamilton theorem for the matrix. Okay, one of the very easiest pattern of question और जिसके बारे में हमने n number of time discuss किया था कि बेटा ऐसे questions आपको already पहले भी आए हैं, in the upcoming GATE exam also आ सकते हैं. Here is the proof. Yes, we are having a question. सेकेंड थिंग, जिन स्टूडेंट्स का पेपर अभी अपकमिंग वीक में है, ओके, देयर इज अ चांस कि आपको एक कैली हैमिल्टन का क्वेश्चन, छोटा सा ही क्वेश्चन लेके देखने को मिल सकता है. So how we can approach this question? We can go with this one. सिंपली आपको बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन के लिए बहुत आसान सा क्वेश्चन बना दिया है. Here you can go with the two methods. I am writing both the methods. Wherever you are comfortable, you can go. अगर किसी स्टूडेंट को शॉर्ट ट्रिक नहीं ध्यान में है, कोई दिक्कत नहीं है. You can approach it directly. P minus lambda I equals to 0. You can go with the 2 minus lambda 1 0 or 3 minus lambda E equals to 0. When we will multiply, it will be 2 minus lambda into 3 minus lambda E equals to 0. ठीक है. So we are having the option whatever you want to do, you want to go with this one, you can approach. Okay, so I will go with this one. This will be lambda square minus 5 lambda plus 6 equals to 0. Lambda square minus 5 lambda plus 6 equals to 0 we are getting here. So this is the characteristic equation. I can use the Kelly Hamilton. What the Kelly Hamilton says, कि आप किसी भी मैट्रिक्स में for any given स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स ओन कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन. तो लैम्डा को आप मैट्रिक्स अगर पी है तो पी से रिप्लेस करा सकते हो और पी की जगह लैम्डा पुट कर सकते हो. सो इन दिस केस इट विल बी पी स्क्वायर माइनस 5p और प्लस 6i इक्वल्स टू 0. इफ यू विल गो विद दिस वन, तो यू कैन सी p स्क्वायर माइनस 5p प्लस 6i इक्वल्स टू 0.
ठीक है, p square minus 5p plus 6i equals to 0 will be your answer. तो if you want to go with the simple approach आप जा सकते हैं. किसी स्टूडेंट को अगर we already had a discussion in terms of the concept express, अगर आपने हमारे concept express के वीडियोस देखे हैं तो वहां हमने डिस्कस किया था शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, for 2 cross 2 how to find out the characteristic equation for a 2 cross 2 matrix. So this will be the method number 2. This is the shortcut only. If you want to go directly, so the shortcut says what? Shortcut says lambda square minus trace of the matrix multiply with the lambda plus determinant of the matrix and e equals to 0. This will be your characteristic equation only बेटा. ठीक है, जब आप यहाँ से solve करेंगे तो lambda square as it is है. What will be the trace? Look at here. What will be the trace of this matrix? Ma'am, trace is nothing but sum of principal diagonal element 2 and 3. So it will be 2 plus 3 multiply with the lambda plus determinant will be 2 into 3 or minus 0. So this is nothing but 6. ठीक है, e equals to 0. So characteristic equation बन रही है lambda square minus 5 lambda plus 6 e equals to 0. Since we need to go here for the final solution, तो final solution आपके पास क्या आ जाएगा in terms of the p? So you can replace lambda by p, तो it will be again p square minus 5p plus 6i equals to 0, and this will be your final solution. I hope you can understand this point very easily. You guys can solve and you can get the result. This using the second method, which is the shortcut, and this is the conventional approach जो हम already कई बार discuss करते हैं. Wherever you are feeling comfortable, you can go and you can solve. ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था. Let's proceed with the next question, which is a direct question. As I told you n number of times, मैंने आपसे कहा है क्या कि we can expect one question from the operators. Gradient, divergent, curl में से एक क्वेश्चन आ सकता है और वन क्वेश्चन कैन बी देयर फ्रॉम द थ्योरम ग्रीन गॉस स्टॉक. अभी जो माइनिंग ब्रांच में क्वेश्चन आया है, दिस क्वेश्चन इज डेडिकेटेडली फ्रॉम द ऑपरेटर. ऑपरेटर में से किसकी बात कर रहा है? डाइवर्जेंस की बात कर रहा है. जिन लोगों का अपकमिंग ओके वीक में है, देयर इज अ चांस कि आपको ग्रीन गॉस स्टॉक में से एक क्वेश्चन श्योरली देखने को मिलेगा. ठीक है, चलिए. So let I and j be the unit vectors in the x and y directions respectively. We are having this function. ठीक है, डाइवर्जेंस पूछ रहा है तो वी नो वेरी वेल डाइवर्जेंस ऑफ एनी ऑफ द गिवन वेक्टर फंक्शन इज नथिंग बट डेल ऑफ f1 by del x, del f2 by del y और del f3 by del z. दिस इज कॉल्ड योर डाइवर्जेंस ओनली. यही आपके लिए सिंपल डाइवर्जेंस की डिफाइन है. ठीक है, what to do when we are looking for the divergence? तो अब क्या सॉल्व करना है? सिंपली निकालो. ये रहा आपके पास f1, ये रहा f2, f3 अवेलेबल नहीं है. So when I will go with the divergence of this function, इसका करना है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन 2xy. इसका करेंगे y के रेस्पेक्ट में. इट विल गिव यू 3y स्क्वायर x ओनली. ठीक है, आई थिंक दे गिव यू सम पॉइंट दिया है आपको, क्या है 3 और 2. तो लेट्स फाइंड आउट द डाइवर्जेंस एट द पॉइंट 3 and 2. मतलब x की जगह 3 और y की जगह 2 पुट करना है. So this will give you 3 into 2 square means 4 multiply with the 3, which is giving you what? Which is giving you 6 into 2 12 और प्लस यहाँ से बन रहा है 12 into 3 36, which is nothing but 48 only. So this 48 should be my final answer. ये जो 48 दिखाई दे रहा है ये हमारा क्या हो गया बेटा? फाइनल आंसर हो गया. ठीक है, very easily we can approach. Here we are having options. Now again this is a memory based question, तो ऑप्शन का फ्लक्चुएशन हो सकता है, ABCD में से कहीं भी हो सकता है, but the answer will be 48, that for sure. ठीक है, चलिए let's proceed with the next question. What we are having here is the next question. Question is the straightforward question from the Fourier series. क्लास में इस पे ऑलरेडी कई बार डिस्कशन किया गया है. क्वेश्चन बोल रहा है which of the following statements about Fourier series is or are correct. So this is a MSQ. ये क्या है आपके पास? MSQ है, तो मल्टीपल ऑप्शंस करेक्ट हो सकते हैं. फर्स्ट स्टेटमेंट सेज द फूरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स. यस, वी नो वेरी वेल. फूरियर सीरीज ऑफ इवन फंक्शन ऑलवेज कंटेन कोसाइन टर्म. फूरियर सीरीज ऑफ एन ऑड फंक्शन ऑलवेज कंटेन ओनली द साइन टर्म्स. ये बात हम अच्छे से जानते हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है एब्सोल्युटली. फूरियर सीरीज ऑफ ऑड फंक्शन कंटेन ओनली कोसाइन टर्म्स, नहीं. ठीक है, फूरियर सीरीज ऑफ एन इवन फंक्शन कंटेन ओनली साइन टर्म, नहीं. Fourier series of an odd function contain only sine terms. Yes, correct. Fourier series of an odd function contains sine terms and even function contains cosine terms. ठीक है, ये बात हम अच्छे से जानते हैं. So these should be the correct. कौन सा? ऑप्शन ए और ऑप्शन डी. मतलब स्टेटमेंट वही है, सिंपल. अगर इवन फंक्शन है तो सिर्फ कोसाइन टर्म्स होंगी फूरियर सीरीज में, और ऑड फंक्शन है तो ओनली एंड ओनली साइन टर्म्स होंगी. ठीक है, लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन इज फ्रॉम द, लेट्स सी क्या बोल रहा है क्वेश्चन. डिफरेंशियल इक्वेशन जैसा कुछ दिख रहा है.
हाँ ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन? द क्वेश्चन इज आस्किंग अबाउट नॉन लीनियर सेकंड ऑर्डर, ठीक है, एंड फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो एक एक करके चेक करते हैं, पहले तो ऑर्डर डिग्री भी चेक कर ले. तो व्हेन आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर ऑप्शन डी, तो आपको दिख रहा है यहाँ पे ऑर्डर कितना है मैम? ऑर्डर तो 2 है, हाईएस्ट डेरिवेटिव ये रहा, और उसकी पावर कितनी है? 1 है, तो डिग्री 1 है. बट दिस इज ए लीनियर, ठीक है, d2y by dx2 plus cos x dy by dx plus exy, ये क्या है? ये लीनियर है. वी आर लुकिंग फॉर द नॉन लीनियर, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता. लेट्स कम टू द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी, dy by dx होल स्क्वायर प्लस 3y इक्वल्स टू 0. ऑर्डर कितना है? 1 है. डिग्री कितनी है? 2. व्हाट यू आर लुकिंग? यू आर लुकिंग सेकंड ऑर्डर एंड डिग्री 1. So this cannot be my answer again. Let's come to the third one, means option, next option B. d2y by dx2 plus sin x is equals to 0. Order is 2. Yes, degree is 1. And again, this is a linear. ये क्या है? Linear है. But when I will go with this one, d2y by dx2 plus cos y equals to 0. Just because of this cos y, ये क्या बन गया? ये non linear बन गया. अगर इस cos y की जगह cos x होता तो again ये भी linear बन जाता. We can see here the order is nothing but 2 only. ठीक है, डिग्री कितनी आ रही है? 1 आ रही है, और ये क्या है? नॉन लीनियर है. आर यू लुकिंग फॉर नॉन लीनियर? यस, वी आर लुकिंग फॉर नॉन लीनियर. तो दिस शुड बी माय आंसर. बात समझ में आई? ये cos y है, y का फंक्शन नहीं होना चाहिए था, y का फंक्शन हो गया है ये. इट मींस दिस इज नथिंग बट ए नॉन लीनियर. अगर ये भी x का होता फंक्शन तो वी कैन श्योरली से दिस इज नथिंग बट ए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन. तो आई होप दिस इज क्लियर. सिंपल क्वेश्चन. लेट्स गो विद द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक क्वेश्चन हमने मिस किया, नहीं ये फोर्थ था. लेट्स कम टू द फिफ्थ वन. तो दिस इज टॉकिंग अबाउट सिंपल मैच द फॉलोइंग है. आपको मैच करना है और बताना है डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप. सेम पैटर्न ऑफ क्वेश्चन, नॉट एग्जैक्टली सेम, बट हाँ डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला का क्वेश्चन सीएस ब्रांच में भी पूछा गया था. दे आर आस्किंग अबाउट द बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन. वी नो वेरी वेल बाइनोमियल का फॉर्मूला होता है एनसीआर, प्रोबेबिलिटी एट एक्स इज इक्वल टू आर इज इक्वल टू एनसीआर पी पावर आर क्यू पावर एन माइनस आर. तो यहाँ बन जाएगा एनसीएक्स, ठीक है, p पावर x 1 माइनस p पावर n माइनस x. तो आई कैन से p विल बी देयर विद द 2. p जाएगा किसके साथ? 2 के साथ. पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला होता है e पावर माइनस लेमडा, लेमडा पावर x या लेमडा पावर k अपॉन k फैक्टोरियल. यहाँ k की जगह x लिखा है, चलेगा. तो दिस q विल बी देयर विद द थर्ड, ठीक है. फिर एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन, लेमडा e पावर माइनस लेमडा. यस, वी नो वेरी वेल. तो यहाँ से r विल गो विद द फोर्थ ओनली. और लास्ट बच रहा है आपके पास एस. ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का क्वेश्चन जो पूछा गया है, यहाँ पे एग्जैक्ट फॉर्मूला आपसे पूछा गया था. ये फॉर्मूला दिया था, ओके, इन टर्म्स ऑफ लिटिल बिट चेंजेस, और पूछा था कि बताओ ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है इन द सीएस ब्रांच. एंड हियर इन द माइनिंग दे आस्क अबाउट कि बताओ मैच करके बताओ. तो नाम लिखा है, दिस इज नथिंग बट द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन. ये एस कहाँ जाएगा? एस 1 की तरफ जाएगा. दिस शुड बी माय आंसर. अब ऑप्शंस में जैसा भी जो भी अवेलेबल हो आप चेक कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ऑप्शंस नहीं है. यू कैन चेक अकॉर्डिंगली. सीक्वेंस यही रहेगा, आंसर यही रहेगा. ठीक है, चलिए लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ, let's read. We will have a discussion using linear regression. Least square, the best fit line for the given data set is y equals to 2.2x plus 2.3. Given that the residual sum of squares is 25.8, then the coefficient of the determinant r square. What we need to find out, पहले यहाँ लिख लेते हैं. We need to find out here the coefficient of r square. ठीक है, अब एक बात समझे बेटा, सबसे पहले coefficient of r square is nothing but the coefficient of r square या coefficient of determination is nothing but r square. और r square की वैल्यू होती है हमेशा आपके पास 1 माइनस. हियर वन थिंग इज गिवन टू यू ऑलरेडी विच इज RSS, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. ये क्या है? RSS, रेजिडुअल सम ऑफ स्क्वायर. तो यू कैन राइट डाउन RSS divided by TSS. TSS is called the total sum of squares. I'm writing here. What is this? This RSS is residual sum of squares, जो आपको दिया है ऑलरेडी. ठीक है, और TSS is called the total sum of squares. Total sum of squares, sum लिखा है ना, total sum of squares. ठीक है, या ऑलरेडी आपको दिया है. तो व्हाट वी कैन डू, ये वैल्यू आपको दी है, यहाँ पुट कर दोगे. यू नीड टू फाइंड आउट हियर द TSS ओनली. आपको सिर्फ TSS निकालना है. हाउ वी विल फाइंड आउट द TSS? वी कैन फाइंड आउट द TSS. ठीक है, सिंपली आई थिंक इसमें एक चीज और होनी चाहिए थी. ठीक है, आई थिंक वन द टेबल इज मिसिंग हियर. इट शुड, इस क्वेश्चन में यहाँ नहीं बनाइए, मैं बना देती हूँ, मेरे पास है. द टेबल शुड बी मेंशन हियर. ठीक है, क्योंकि वैल्यूज नहीं होंगी तो हाउ आई विल फाइंड आउट दिस रिजल्ट. वैल्यूज तो होनी चाहिए ना, एक्स और वाई की वैल्यूज आपके पास होंगी, अदरवाइज यू आर नॉट सपोज टू फाइंड आउट द टेबल हियर.
अब वो वैल्यू ही नहीं निकाल पाएंगे। सो एक टेबल हमारे पास थी जो क्वेश्चन में गिवन भी था, एक्स और वाई की वैल्यू थी, एक्स की वैल्यू थी 2 3, अरे सॉरी, एक्स की वैल्यू थी 2 3 4 और 5। यू गैस कैन कंफर्म अबाउट द डेटा आल्सो, 2 3 4 5, और ये वैल्यू गिवन थी 8 9 7 और 16। ठीक है, मेरे हिसाब से ऐसा ही कुछ गिवन था। दे गिव यू लाइक दिस एंड वी आर लुकिंग फॉर दिस टीएसएस। अभी हम निकालेंगे टीएसएस। कैसे निकाल सकते हैं? वी कैन फाइंड आउट द टीएसएस। ठीक है, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ निकालना होगा वाई बार। वाई बार का मतलब हुआ मीन। मीन इज नथिंग बट सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स मतलब 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 16 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है? 4 है। तो वी कैन प्रोसीड विद दिस वन। क्या बन जाएगा? ये आपके पास बनेगा 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 16। आई थिंक दिस विल बी 4 और 0 40। वी आर हैविंग हियर 40। 40 डिवाइडेड बाय 4, 40 डिवाइडेड बाय 4 का मतलब हुआ बेटा 10। ठीक है, तो y बार की वैल्यू अभी आपके पास आई है 10, बट वी आर लुकिंग फॉर टीएसएस। और वो जो टीएसएस है ना, ठीक है, वो टीएसएस कैसे निकलेगा? वो यहां से निकलेगा। टीएसएस इज नथिंग बट समेशन ऑफ वाई आई माइनस वाई बार का होल स्क्वायर। वाई आई का मतलब समझे? दिस इज योर y1 y2 y3 y4। यू शुड गो विद y1 माइनस वाई बार, y2 माइनस वाई बार, y3 माइनस वाई बार, y4 माइनस वाई बार, है ना? तो यहां से बन जाएगा 8 माइनस ये कितना आया था? 10 का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट वैल्यू क्या है? 9, 9 माइनस 10 का स्क्वायर। देन नेक्स्ट वैल्यू इज 7 और फिर 16। ठीक है, तो 7 माइनस 10 स्क्वायर एंड देन 16 माइनस 10 स्क्वायर। ठीक है, वी कैन प्रोसीड विद दिस वन। माइनस मतलब 4, ये बन जाएगा 1, दिस विल बी 9 एंड दिस विल बी 36। तो 36 और 1 40, 40 और 11 आई एम गेटिंग हियर। ठीक है, 40 36 और 1। ठीक है, तो फिर से 10, तो आई एम गेटिंग हियर नथिंग बट 50 ओनली। सो दिस टीएसएस कितना मिला आपको? 50 मिला। नाउ यू आर हैविंग ऑल द वैल्यूज, वी कैन पुट हियर एंड वी कैन गेट द रिजल्ट। लेट्स पुट हियर द वैल्यूज। व्हेन आई विल पुट, लेट्स चेंज द कलर एंड यही हम वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। सो द आर स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस आर एस एस, जो कितना है? 25.8 है, डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू, कहाँ गया? डिवाइडेड बाय दिस वैल्यू विच इज 50 ओनली। ठीक है, when you will solve the 1 minus 25.8 divided by 50, it will give you I think 0.516। यहाँ से कुछ आएगा तो 1 minus 0.516 और ये कुछ आना चाहिए 0.48 समथिंग, 0.484 करीब कुछ आना चाहिए मेरे हिसाब से। So we can go with this one, 0.484, which is the r square value. The question is asking about the r square only. So the coefficient of determination r square आपसे पूछा। ठीक है, like this we can solve। चलिए लेट्स प्रोसीड विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस एक क्वेश्चन और है, नहीं एक क्यों है, और भी होगा। ठीक है, देख लेते हैं। या वी आर हैविंग 2 more क्वेश्चंस। ठीक है, 8 क्वेश्चंस आर देयर। लेट्स टॉक अबाउट दिस वन। एक अच्छा क्वेश्चन है, हेजियन की बात कर रहा है। हेजियन मैट्रिक्स क्या भी समझाते हैं। द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट ऑफ द हेजियन ऑफ एफ एक्स वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस 8x माइनस 7y एंड इट्स स्टेशनरी पॉइंट्स इज एट इट्स स्टेशनरी पॉइंट इज। तो सबसे पहले बात करते हैं बेटा व्हाट इज हेजियन मैट्रिक्स। ठीक है, हेजियन मैट्रिक्स क्या होता है? बेसिकली दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डबल ऑर्डर डेरिवेटिव विद द डिटरमिनेंट। तो आई कैन राइट डाउन फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द हेजियन मैट्रिक्स which depends on the double order derivative. So Hessian matrix को you can denote by H, which is always equals to fxx, fxy, fyx, and this will be fyy. Now, can you understand what I am writing here? I am writing here. I will show you this one. This is H. ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो। अगर डेरिवेटिव की फॉर्म में लिखना है तो you can write down this in terms of the derivative, which is del 2f by del x2. This is nothing but x का डबल ऑर्डर, f का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में। दिस इज del 2f अपॉन del x del y, दिस इज del 2f अपॉन del y del x एंड दिस इज del 2f अपॉन del y2। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड द हेजियन मैट्रिक्स। आपको क्या करना है? द फंक्शन इज गिवन टू यू। इस फंक्शन के लिए पहले आप सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे x के रेस्पेक्ट में और y के रेस्पेक्ट में, फिर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव निकालोगे और वैल्यू उठा के यहाँ रख दोगे। इसने बोला है स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट कहाँ से आएगा? स्टेशनरी पॉइंट आई होप यू गाइस रिमेंबर कैसे निकालते थे हम मैक्सिमम मिनिमम ऑफ 2 वेरिएबल के अंदर p और q को 0 के इक्वल रखने से ना। तो द सेम थिंग हियर वी कैन गो विद दिस वन। इवन इफ एनी स्टूडेंट वांट्स टू राइट डाउन इन दिस टर्म ऑफ द p और q की फॉर्म में लिखना चाहो तो आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो। ठीक है, p और q तो है नहीं यहाँ पे, लेकिन ये r है,
ये t है, ये s है और ये s है. इफ यू वांट टू राइट डाउन इन टर्म्स ऑफ दैट तो आप ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, तो लेट्स अंडरस्टैंड हाउ वी कैन सॉल्व इट. तो सबसे पहले जो फंक्शन गिवन है वहीं से स्टार्ट किया जाए. तो इट इज गिवन टू अस द फंक्शन fxy which is x square plus y square plus xy minus 8x और माइनस 7y. ठीक है, लेट्स फाइंड आउट द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. पहले सिंगल ऑर्डर निकालेंगे फिर डबल ऑर्डर. तो fx का मतलब फंक्शन का डबल ऑर्डर सिंगल ऑर्डर डेरिवेटिव x के रेस्पेक्ट में. x स्क्वायर का 2x, y स्क्वायर 0, xy का y और माइनस 8 आ गया. ठीक है, देन आई विल गो विद fy मतलब y के रेस्पेक्ट में. तो इट शुड बी डेल f बाई डेल y के रेस्पेक्ट में करोगे तो 2y, यहां से बन जाएगा प्लस x. ठीक है, और यहां से बन रहा है माइनस का 7. नाउ सिंस वी नीड टू फाइंड आउट द स्टेशनरी पॉइंट, तो स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या करेंगे, ये फर्स्ट और ये सेकंड इक्वेशन. दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्लास 6. 2 इक्वेशंस, 2 अननोन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन्स. सिंपली सॉल्व करके अननोन्स की वैल्यू निकालो. व्हेन आई विल गो विद दिस वन, आई कैन राइट डाउन दिस इज नथिंग बट 2x plus y minus 8 equals to 0. आई नीड टू पुट द वैल्यू equals to 0 रखेंगे तभी स्टेशनरी पॉइंट आएगा. यहाँ पे हो जाएगा x plus 2y minus 7 equals to 0. एक काम करो, ये जो इक्वेशन है इसको 2 से मल्टीप्लाई करा दो. तो 2 से मल्टीप्लाई कराया, यहाँ 4 हो जाएगा और यहाँ पे दिस विल बिकम 4y, दिस विल बिकम 14. ठीक है, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड. माइनस माइनस और यहाँ हो गया प्लस, ये कैंसिल आउट. वी आर गेटिंग माइनस 3y एंड वी आर गेटिंग हियर ठीक है 6 आ रहा है विच इज प्लस 6 इक्वल्स टू 0. सो वैल्यू ऑफ y इज नथिंग बट कितना, माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 6. तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ y एज इन 2. y की वैल्यू आपके पास आ गई, किसी भी एक इक्वेशन में रख दो, x की वैल्यू निकालो. इफ आई विल पुट हियर तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2x प्लस 2 माइनस 8 इक्वल्स टू 0. तो 2x माइनस 6 इक्वल्स टू 0. तो 2x इज इक्वल्स टू 6. तो वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ x हियर एज इन 3 ओनली. x की वैल्यू कितनी आ रही है बेटा, 2x इक्वल्स टू 6. तो x की वैल्यू आपके पास आ रही है 3. सो दिस इज नॉट द स्टेशनरी पॉइंट. द स्टेशनरी पॉइंट विल बी xy. तो अगर आप स्टेशनरी पॉइंट की बात करोगे जो कि xy है, तो पॉइंट आपके पास आ गया 3 और 2 बेटा. ठीक है, अब अगर डबल ऑर्डर डेरिवेटिव में x और y रह जाता है, बिकॉज यू नीड टू फाइंड आउट द रिजल्ट एट द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव, तो आप क्या कर सकते हो, x की जगह 3 और y की जगह 2 रख सकते हो. ठीक है, लेट्स गो विद द डबल ऑर्डर डेरिवेटिव. When I will go with the double order derivative, तो del 2f upon del x2 which is nothing but fxx. मतलब इसी का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव करो x के रेस्पेक्ट में, तो 2 आ जाएगा यहाँ से. फिर इफ यू विल गो विद द del 2f by del y2, ठीक है, y का डबल ऑर्डर डेरिवेटिव फिर से करो y के रेस्पेक्ट में इसी के लिए. तो यहाँ से क्या बन जाएगा, 2 बन जाएगा. दिस इज ऑल्सो गिविंग यू 2. एंड व्हेन यू विल गो, आप चाहे इसका करो y के रेस्पेक्ट में, मतलब व्हाट इज दिस, ये हम जानते हैं ना, del 2f upon del x del y is nothing but del f by del y का अगेन डेरिवेटिव किया जाए x के रेस्पेक्ट में, या फिर del f by del x का डेरिवेटिव किया जाए y के रेस्पेक्ट में. इट गिव्स यू द सेम रिजल्ट. तो y वाले का करोगे, अगर आप इसका करो x के रेस्पेक्ट में इट इज गिविंग यू 1, या इसका करो y के रेस्पेक्ट में इट इज गिविंग यू 1 ओनली. तो दोनों ही केसेस में ये आपको 1 दे रहा है. नाउ यू आर लुकिंग फॉर द डिटरमिनेंट ऑफ h. तो डिटरमिनेंट ऑफ h यहाँ हमने कहा था fxx, fxy, ठीक है, yx, और यहाँ आ जाएगा yy. वी कैन गो विद दिस वन. यहाँ से क्या बन जाएगा, h ये रहा, xx मतलब ये 2, ये 1, ये 1 और ये 2. तो ये कितना दे रहा है, दिस इज गिविंग यू 4 minus 1 3. वी आर लुकिंग फॉर वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट. तो डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आ गई बेटा, 3 आ गई. आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माय पॉइंट. So value of determinant we can get here, which is nothing but 3 only. ठीक है, चलिए लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन. एक अच्छा क्वेश्चन था, पार्शियल डेरिवेटिव के साथ डिटरमिनेंट का यूज है. तो वी कैन गो विद दिस PQRST वाला कॉन्सेप्ट. लेना चाहो तो PQRST से ध्यान रख सकते हो. ठीक है, डायरेक्ट डेरिवेटिव से ध्यान रखना चाहो तो रख सकते हो. किसी भी फॉर्म में आप वो हेसियन मैट्रिक्स को ध्यान रख सकते हो. लेट्स टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन. एक अच्छा क्वेश्चन हमारे पास फिर से. x is given to you, b is given to you, p inverse is given to you. px is equals to b है, py equals to d, y है और d है, and we are looking for the value of y. ठीक है, अब देखो सबसे पहले whatever we are having here we can use, I will say ये क्वेश्चन आया है बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा से. बेसिक्स ऑफ मैट्रिक्स एल्जेब्रा का मतलब होता है सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से. यू कैन कंपेयर बोथ द साइड्स एंड यू कैन गेट द वैल्यू व्हाटएवर यू आर आस्किंग. इनवर्स दिख रहा है लेकिन नहीं है, दिखने में बहुत टफ क्वेश्चन है लेकिन बहुत ज्यादा आसान है. What you can do, you are looking for the value of this one ना, तो एक काम करो यहाँ से लिखो x is equals to p inverse into b. p inverse की वैल्यू आपके पास है, I will write down here only.
ठीक है, x की वैल्यू, x is nothing but your 1 2 and 1. Then I will go here with this p inverse is e minus 6 minus 7. Then this is f 9 or 11. This is minus 1 minus 2 and g. And here we are having b. b is nothing but minus 16 minus 3 or 7. ठीक है, what we need to do, सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और रिजल्ट निकालना है. तो क्या करना है, यू कैन सी, देखो आप डायरेक्ट नहीं कर सकते, यू आर हैविंग दीज 3 अननोन क्वांटिटीज. और आई होप आप लोगों को पता होगा, हमने ऐसे क्वेश्चन ऑलरेडी कई बार कई एग्जांपल डिस्कस किए क्लास के अंदर, विच वी कैन सॉल्व यूजिंग द सिंपल मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन और कंपेयर करा के रिजल्ट निकाल सकते हैं. So what you will do, you will just first of all multiply first row with this first column and compare it with the 1. तो ये तो वैल्यू आ रही है 1, and I will multiply minus 16e. This is giving me minus minus plus 18 और minus 49. ठीक है, so from here I can get the value of this one. ये कितना दे रहा है, here we are having here we are having 9 में से 8 गया तो 1 और कितना 4 minus 1 तो 3. ठीक है, और यहाँ आ रहा है 31 और 1 32. तो आई एम गेटिंग हियर 32 इक्वल्स टू माइनस का 16e. तो e की वैल्यू आपके पास आ गई बेटा कितनी, -2. वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ e कहां से, बाय फर्स्ट रो कंपैरिजन. ठीक है, फर्स्ट रो को कंपेयर करके. सिमिलरली आई कैन कंपेयर द सेकंड रो एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ f. मैं यही कर देती हूँ थोड़ा सा, फिर बाकी नेक्स्ट पीछे कर देंगे. एंड आई विल कंपेयर, तो -16f, ठीक है, -27 और +77 इक्वल्स टू 2. When we will compare -16f equals to, यहाँ से आ रहा है 50 जब उधर जाएगा तो वो बन जाएगा माइनस का 48. तो f की वैल्यू आपके पास आ रही है +3. ठीक है, g और f दोनों हमने निकाल दिए. नाउ इन द सेम मैनर वी कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द नेक्स्ट वैल्यू. ठीक है, सेम मैनर में हम क्या निकाल सकते हैं, g निकालनी है, f निकाल दिया और e निकाल दिया. ठीक है, लेट्स गो विद द g के लिए लास्ट रो को कंपेयर कराना है. क्या मैं यही कर लूं क्या, so that I can use this space only. I'm using the different pen and I want to solve here only. In this space, I will get the result. And I will compare the last row which is -16, ठीक है, +6 और इधर क्या है +7g equals to 1. So this is giving me 7g equals to, ठीक है, I think ये माइनस माइनस +16 है, ये -1 और -16. ठीक है, तो this is giving me 21. So I'm getting the value of g as in 3. g आ गया 3, f आ गया 3 और e की वैल्यू आपके पास आ गई है कितनी, आई थिंक g शुड बी -3, क्योंकि जब ये उधर जाएगा तो नेगेटिव बन जाएगा ना. ये जो दिख रहा है इसको थोड़ा सा दोबारा आप लिख सकते हैं. लेट्स मेक हियर सम मोर स्पेस एंड वी कैन राइट डाउन हियर ओनली. ठीक है, तो व्हाट आई कैन राइट डाउन, व्हेन आई एम कंपेयरिंग, दिस इज +16, सॉरी +16 और ये आपको दे रहा है प्लस का 6 और ये आपको दे रहा है प्लस का 7g इक्वल्स टू 1. तो 7g इक्वल्स टू माइनस का 21. तो g की वैल्यू आ रही है बेटा आपके पास कितनी, -3. ठीक है, e f g तीनों वैल्यूज आ गई. नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू ऑफ दिस वन. अब आप यहाँ उठा के रखोगे वैल्यू किसमें, हियर यू आर हैविंग p y इक्वल्स टू d. तो y विल बी नथिंग बट p इनवर्स इनटू d. p इनवर्स की वैल्यू आपके पास ऑलरेडी है. चलो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं. लेट्स स्टार्ट पुटिंग हियर द वैल्यूज. तो y विल बी y1 y2 y3 और p इनवर्स की वैल्यू अभी एज इट इज रखते हैं जो दिया है, फिर e f g की वैल्यू रखेंगे. e -6 और 7 यही है, -7 है. ठीक है, फिर f -9 and 11 वी कैन चेक. f माइनस नहीं +9 है, अरे बाबा. ठीक है, तो हियर वी आर हैविंग f 9 and 11, लास्ट इज -1 -2 and g. तो -1 -2 and g. Now you can put the value. f की जगह आप पुट करेंगे कितना, f की जगह 3, e की जगह -2 और g की जगह -3. ठीक है, तो I will put here, I will put here. तो ये -2 और यहाँ पे क्या था, f के प्लेस पे 3, so this will be 3 और यहाँ पे एक वैल्यू आपके पास आ रही है -3. ठीक है, नाउ वी आर लुकिंग फॉर द वैल्यू. क्वेश्चन ने पूछा है क्या बताओ, क्वेश्चन ने बोला कि y2 बताओ. y2 वी कैन फाइंड आउट जस्ट बाय कंपेयरिंग द सेकंड रो. ठीक है, सेकंड रो को कंपेयर करके बता दोगे. और वहां d भी तो लिखना था. हाँ, d लिखना है -16 0 7. सो d इज -16 0 and 7. नाउ बाय कंपेयरिंग द सेकंड रो बोथ द साइड्स एंड आई कैन गेट द वैल्यू ऑफ दिस y2. ठीक है, सो यहाँ से ये सेकंड रो को मल्टीप्लाई कराओ इस कॉलम से. सो दिस इज गिविंग यू -48 0 और यहाँ से 77 which is equals to y2. So can you tell me the value of y2
एंड y2 शुड बी 2 9 29। तो y2 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है बेटा, 29 आ रही है। ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो ऑप्शंस, इफ दिस इज एमसीक्यू, ठीक है, ऑप्शंस अवेलेबल है तो यू कैन गो विद द ऑप्शंस और आंसर आपके पास आ जाएगा 29। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। थैंक यू।